Today, I am going to explain chapter number 16, that is semiconductor devices. So, in the concept of this semiconductor devices, in your textbook, first one topic it is given, that is a rectifier circuit. ठीक है, तो ये जो रेक्टिफायर सर्किट है उसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो भी ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इट इज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, लेकिन आज के पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, दैट इज़ द रेक्टिफायर सर्किट। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, तो ये जो डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर in 1947 has greatest impact on electronics, because every electronic circuit it is made by using this semiconductor devices. That's why it is said that this semiconductor is the heart of any electronic circuit. Then, based upon the electrical properties of an element, it is classified into good conductor and bad conductor depending upon the electronic configuration of that material. The element in the fourth group of the periodic table are neither good conductor nor bad conductors of electricity. The conductivity of these element lies between conductivity of conductor and insulator. This class of element is called semiconductor. Hence it is said that this semiconductor is the neither good conductor or nor insulator, but its conductivity it is lies between this good conductor and insulator. It means that this semiconductor is the intermediate material between the good conductor and bad conductor. So here this semiconductor it is defined as semiconductor are those conductor whose conductivity lies between conductor and insulator. तो ये जो whenever we consider the crystal structure and bonding of atom of this element are responsible for electrical conductivity of this element. The electrical conductivity of this material depending upon the temperature and doping with a trivalent and pentavalent impurity. Then any electronic circuit it is made with the help of these semiconductor devices, and this semiconductor have reduced the size and cost of various electronic gadget. So here this semiconductor devices it is deals with the classification of this class of material on the basis of energy band. The type of semiconductors, that is p-n junction diode, transistor, etc. are discussed in this chapter. Then the use of this p-n junction diode as a half wave and full wave rectifier. Then the Zener diode along with its use in regulated power supply. Here we study. Then also we study about the transistor as an amplifier. Then it is also used as an oscillator. Then it is also used in a various logic gate circuit. So this semiconductor it is the important part of any electronic circuit. Hence we say that this semiconductor is the heart of any electronic circuit. वैसे ही जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है टीवी रिमोट में भी ऊपर में वहाँ पे एक एलईडी यूज़ होता है, तो उसी कारण लाइट ग्लो भी होता है। वैसे टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ पे भी एलईडी का ही यूज़ होता है।
तो जैसे हम लोग रिमोट से फंक्शन देंगे तो वहाँ पे टीवी में भी फिर फंक्शन ऑपरेट होता है, तो वो टाइम पे एलईडी ग्लो होता है। सो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उसमें ये सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, दिस सेमीकंडक्टर इट इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। तो ये जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ये क्या होता है पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है कि ये जो सेमीकंडक्टर है, एग्जांपल ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Most of the time this silicon or germanium is used. So here in that chapter we consider only the silicon and germanium material. तो अभी ये जो हम लोगों ने जो मटेरियल कंसीडर किए हैं, तो कोई भी सिलिकॉन अगर कंसीडर करेंगे तो उसी सिलिकॉन एटम में पहले फिर उसमें फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, देन सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, देन so here we consider due to this first orbit it formed the first band, that is the first energy band. Then due to second orbit it form a second energy band. अगर थर्ड ऑर्बिट रहेगा तो देन इट फॉर्म अ थर्ड एनर्जी बैंड, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला रहेगा दैट इज द लास्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल, ठीक है। तो जो भी वैलेंस शेल रहेगा दिस वैलेंस शेल इट फॉर्म अ वैलेंस बैंड। तो ये कैसे होता है पहले हम लोग वो देखेंगे। कंसिडर दैट द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus only in a certain permitted orbit and energy of electron depend on its orbit size. Energy level of electron are fixed according to orbit number. An isolated atom has a discrete and well-defined allow electron energy level. So, in solid, atom come close together. The orbit of every electron is influenced by the charge of neighboring atom. Then all the first orbit electron have slightly different energy level and that form the first energy band. Similarly, the billions of second orbit, that is the electron with the slightly different energy level, or it is also known as the second energy band, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी बैंड के लिए एक डायग्राम कंसीडर किया है। यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी कंसीडर किया है और यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट बैंड कंसीडर किए, दैट इज फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, वैलेंस बैंड एंड देन लास्ट वन इज द कंडक्शन बैंड। तो thus for a given solid closely spaced energy level of all electrons in a particular orbit is called energy band. The separation between this conduction band and a valence band in any energy band diagram is called a forbidden energy gap or a band gap. So the question arises, what is mean by this valence band? तो वैलेंस बैंड यानी क्या रहेगा, द एनर्जी बैंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया, यहाँ पे दिस इज द वैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे जो भी फॉर्म हो रहा है उसी को क्या कंसीडर किया है, इट इज़ नोन एज द वैलेंस बैंड। देन यहाँ पे हम लोगों ने कंडक्शन बैंड कंसीडर किया है। तो ये जो कंडक्शन बैंड है, द लोएस्ट अनफील्ड permitted energy band just above the valence band is called conduction band. It is the lowest permitted energy band. It is empty or partially filled. तो वैलेंस बैंड हमेशा फील्ड रहेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड हमेशा कैसे रहेगा, एक तो एम्प्टी रहेगा या फिर
ये पार्शली फिल्ड रहेगा। तो ये जो कंडक्शन बैंड है, दिस कंडक्शन बैंड इज द इमेजिनरी बैंड। ठीक है, अभी वैलेंस बैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है ड्यू टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ये जो कंडक्शन बैंड कंसीडर किया है, दिस कंडक्शन बैंड इज द imaginary band, and with the help of this conduction band, semiconductor show its conductivity. So with respect to these two band, that is the valence band and conduction band, this semiconductor show its conductivity, and these two bands are separated by a small energy gap, and this small energy gap is known as forbidden energy gap, and also it is known as the band gap. तो ये जो forbidden energy gap है, this forbidden energy gap, it is denoted by a symbol that is E suffix G। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय बैंड गैप, तो हम लोग बोलेंगे द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन एनर्जी बैंड डायग्राम इज कॉल्ड बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो any material show conductivity with the help of this conduction band and this valence band structure। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे आता है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आएगा, यहाँ पे दिस एनर्जी गैप का यूज़ करके यहाँ पे शो किया गया है कि सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है। तो हम लोग को पता है कि एक तीन टाइप के हम लोग सपोज कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेमीकंडक्टर है, सेकंड वाला हम लोगों ने कंसीडर किया है कंडक्टर, एंड देन लास्ट वाला हम लोग कंसीडर करेंगे दैट इज़ इंसुलेटर। तो पहले कंसीडर करो कंडक्टर है। वी नो दैट द कंडक्टर आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई वी से दैट दिस मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये जो हम लोग बैंड एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फॉर कंडक्टर के लिए, तो वहाँ पे देखो द कंडक्टर इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो अभी यही वाला अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड इसको हम लोग भूल जाएंगे, और अभी हम लोग कंसिडर करेंगे सिर्फ यहाँ पे वैलेंस बैंड एंड सेकेंड वन इज़ द कंडक्शन बैंड। तो उसी को हम लोग यूज़ करके अभी हम लोग पहले एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फॉर कंडक्टर के लिए। तो कंसिडर करो कि यहाँ पे हम लोगों ने दो बैंड कंसिडर किए। तो इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, वैलेंस बैंड कैसे रहेगा, ये कम्प्लीटली फील्ड रहेगा विथ इलेक्ट्रॉन, एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, बट two bands are overlap with each other, यानी there is no gap between these two bands। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, अभी ये पूरा ओवरलैप हो गए दोनों भी बैंड्स। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ दिस कंडक्टर एनर्जी गैप इज ज़ीरो। ठीक है, देन due to the overlapping of valence and conduction band, no extra energy is required to move the electron from valence band to conduction band। तो मैंने बोला था वैलेंस बैंड में यहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अभी यहाँ पे दोनों बैंड के बीच में कुछ भी गैप नहीं है। Here we consider the forbidden energy gap is zero. So it is easy for electron to move from this valence band to conduction band. When electric field is applied across such conductor, large number of electrons are available for conduction. So the conductivity is very high for conductor. Example है इसी के लिए जिंक है, मेटल है। Then in some conductor the valence band
may be completely filled and the conduction band is partially filled, but the energy gap is very small. तो यहाँ पे जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर को गुड कंडक्टर बोला गया है बिकॉज देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. देन द नेक्स्ट वन इज द इंसुलेटर. तो इंसुलेटर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डजंट कंटेन्स एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जो भी इंसुलेटर रहेगा, अगर हम लोग इंसुलेटर कंसीडर करेंगे तो इंसुलेटर के वक्त यहाँ पे कंसीडर करो अभी फिर से यही एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है. तो इसी एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम लोगों ने इसको रख कर लिया है. हाँ, अभी देखिए, whenever we consider the valence band and conduction band again, and here it is the forbidden energy gap, that is this Eg. ठीक है. तो energy band structure of insulator, this is a diagram for energy band structure for insulator. Then the conduction band is completely empty and the valence band is completely filled with electrons. Then energy gap between the conduction band and valence band is greater than 3 electron volt. It is greater than 3 electron volt. When an electric field is applied, there is no new energy level is available to the electron and there is no conduction of electricity because of large energy gap between this valence band and conduction band. Then the transition of electron from valence band to conduction band is not possible. At room temperature, the thermal energy is much less than the band gap energy. Hence, it is difficult for electron to travel from valence band to conduction band because of this large forbidden energy gap. तो इसीलिए यहाँ पे इंसुलेटर है, it doesn't show the conductivity. Then next वाला जो है that is सेमीकंडक्टर. अभी हम लोग देखेंगे. तो सेमीकंडक्टर में भी हम लोग फिर से सेम एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे. So this is the energy band diagram for a semiconductor, and in that we consider this energy gap, it is less than 3 electron volt. So whenever the forbidden energy gap is small as compared to that of insulator, then for germanium energy gap is 0.6 electron volt and for silicon it is 1.1 electron volt. So due to small energy gap, some of the valence band electron make a transition to the conduction band by acquiring thermal energy. It means that whenever we consider the semiconductor at room temperature, so some electrons are present in valence band. So it is easy for electron to go from valence band to conduction band because of this thermal energy. तो इसीलिए यहाँ पे फिर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन पॉसिबल होता है. Those electron leave an equal number of vacant state or holes in the valence band. Then at room temperature and at higher temperature, the electron acquire a sufficient thermal energy and it jumps to the conduction band. But at low temperature, electron does not acquire energy, so it remains in the valence band. तो एक तो रूम टेम्परेचर या फिर हायर टेम्परेचर रहेगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. लेकिन अगर टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो फिर क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है
वो एज इट इज़ वैलेंस बैंड में ही रहेंगे. सो वी से दैट एट लो टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर. When electric field is applied across such semiconductor, then in that case a few electrons are available in the conduction band, so the conductivity of semiconductor is possible, but it give a low conductivity. So this is about the energy band diagram for semiconductor. तो ये जो with respect to this energy band diagram for this semiconductor show its conductivity at room temperature only, but whenever we consider the absolute zero temperature, so it doesn't show the conductivity and it acts as a insulator. Hence this semiconductor, it is defined as it is neither a good conductor nor insulator. Its conductivity is lies between conductor and insulator. Then this semiconductor having two types. First one is the intrinsic semiconductor and second one is the extrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor, it is a pure form of semiconductor and it is defined as a pure and perfect semiconductor with an ideal crystal structure is called intrinsic semiconductor. Example, pure silicon or germanium, these are the example of intrinsic semiconductor. Then second one is the extrinsic semiconductor. तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल we consider the pure form of semiconductor. In this pure structure, here we add a trivalent or pentavalent impurity, and by adding this trivalent impurity it form a p-type semiconductor, and by adding a pentavalent impurity it form n-type semiconductor. तो ये जो इसमें ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एलिमेंट जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है उसी को बोला जाता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डोपिंग. तो इसीलिए दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज़ डिफाइंड एज अ डोप सेमीकंडक्टर विथ small impurity atom added to it is called extrinsic semiconductor. So this p-type and n-type semiconductor are the extrinsic semiconductor. तो ये जो हम लोग पहले देखेंगे अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या होता है. तो एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. And here we consider the two example, that is silicon or germanium. Then here to study this intrinsic semiconductor, consider this structure. This is the pure form of silicon structure. So here silicon atom has 4 valence electron. So this is the valence shell structure for silicon. So here we consider this one silicon. So this silicon consists of 4 electron in its valence shell. So here I show the 4 electron, 1, 2, 3 and 4. Then every silicon atom share its 4 valence electron with its 4 neighboring atom to form a covalent bond, complete their octet. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, this silicon atom it form a covalent bond with the neighboring silicon atom. So this line, this curved line, it denotes the formation of covalent bond. Then at absolute zero temperature, valence band is completely filled and the conduction band is empty. So no electrons are available for conduction and thus silicon behave as an insulator at absolute zero temperature. Then अभी इसको क्या किया हम लोगों ने, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे कंसीडर किया. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे कंसीडर करेंगे तो इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर. तो अभी क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को अभी हम लोग रूम टेम्परेचर पे कंसीडर करेंगे. एट रूम टेम्परेचर फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी. ठीक है, अभी इसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे कंसिडर किया तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट होगा. तो इसी के कारण ये जो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, इट गेट ब्रेक.
एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रेज टू कंडक्शन बैंड। तो फिर क्या हो जाएगा, जो भी ये जो वैलेंस शेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंसीडर किया, यानी वही से यहाँ पे फिर एग्जिस्ट होगा वैलेंस बैंड। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रेज टू द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। The departure of electron from valence band create a vacancy is bond and this is called hole। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी के कारण सपोज कंसीडर करो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो क्या करेगा, इट गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में अभी ये चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अभी एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो जो भी वैकेंसी है उसी को क्या बोला जाता है, दिस वैकेंसी इज नोन एज होल। इट बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज, और ये होल क्या रहता है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। एवरी thermally broken bond create a electron hole pair. Thus, intrinsic semiconductor has equal number of holes and equal number of free electron. So we say that Np it is equals to क्या हो जाएगा, N E it is equals to NH, ठीक है, where Ne denotes the number of electron and this NH it denotes the number of hole। अभी ये इक्वल कैसे होगा, जैसे मैंने बोला था कि जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो वैकेंसी ये क्या करेगा, इट ट्राई टू फील इट्स वैकेंसी बाय पुलिंग वन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द नेबरिंग सिलिकॉन एटम। तो कंसिडर करो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से हो गया तो अगर ये एटम यहाँ से निकला है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो स्ट्रक्चर हम लोग रूम टेम्परेचर पे कंसीडर करेंगे तब तक यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल्स। So we see that the energy band diagram for the intrinsic semiconductor at room temperature जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे इसके लिए भी ऐसा ही ये वर्क करेगा। then sorry, when potential difference is applied across a semiconductor then these electrons and holes contribute to the current, but the current in the intrinsic semiconductor is too small for any practical application। यानी जो सेमीकंडक्टर में जो भी हम लोगों को जो भी आउटपुट मिलता है इस आउटपुट का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा लो रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि द करंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ टू स्मॉल फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। देन वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है मैंने जिसे बोला था, दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज़ डिवाइडेड इनटू अगेन टू टाइप, दैट इज़ द पी टाइप एंड एन टाइप। तो अभी हम लोग फर्स्ट वन वाला यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट इज़ पहले कंसीडर करेंगे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कंसीडर करो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी हम लोग सेम ऐसा ही सिलिकॉन स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसीडर करेंगे। देन तो सिलिकॉन के बदले में हम लोग जर्मेनियम भी कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे व्हेन सिलिकॉन इज डोप विथ अ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। तो इसी सिलिकॉन में अभी हम लोग क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, देन इट फॉर्म अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो भी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे वो रहेगा आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एंड बाय यूजिंग दिस एलिमेंट हियर इट फॉर्म अ एन टाइप semiconductor. This pentavalent
pentavalent impurity has a 5 electrons in its valence shell. So every pentavalent element, it form a covalent bond with the नेबरिंग सिलिकॉन एटम. यानी कैसे होता है ये हम लोग एक देखते हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ पेंटावलेंट एलिमेंट, सपोज हियर वी कंसिडर द एग्जाम्पल दैट इज अर्सेनिक. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अर्सेनिक AS. तो अर्सेनिक के पास इट कंसिस्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. So out of this 5 electron, 4 are form a covalent bond with the neighboring silicon atom and 1 electron is free. ठीक है. तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, every pentavalent element it form a covalent bond with the neighboring silicon atom and it share its 4 electron with a 4 silicon atom to form octet. Then the fifth electron of the dopant is not the part of covalent bond. ठीक है, ये अभी it doesn't a part of this covalent bond. ये क्या हम लोगों को एक free दिख रहा है. तो यहाँ पे अभी क्या होगा, hence it is loosely bound with its core. Then a very small energy of around 0.05 electron volt for silicon and 0.01 electron volt for germanium is required to make the electron free. So even at a room temperature it is available for conduction. Since every pentavalent atom donate 1 electron in conduction band, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे डोनेट होगा, ये इट डोनेट इन अ कंडक्शन बैंड. एंड कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, every pentavalent atom donate 1 electron in conduction band and conductivity is mainly due to negatively charged electrons, hence it is called n-type semiconductor. Then in case of this n-type semiconductor also has a few electrons and holes produced due to thermal energy, and it has a large number of free electron contributed by a donor atom and a very few electron and a hole pair generated due to thermal energy. Thus in n-type semiconductor, electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carrier. In n-type semiconductor, the number of electrons in the conduction band is very large compared to the number of holes in valence band. So here in case of this n-type semiconductor, this Ne is greater than NH. It means that the number of electrons are greater as compared to the number of holes. तो यहाँ पे अभी ये जो होल्स कैसे क्रिएट होगा इन केस ऑफ दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मैंने जैसे बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, हियर वी कंसिडर दिस स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, सपोज एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और यहाँ पे अर्सेनिक के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिलीज होकर कहाँ पे जा रहा है, ये भी कंडक्शन बैंड में ही जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि कंडक्शन बैंड में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो यहाँ पे भी अगर ये जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. तो वैकेंसी क्या करेगा, इट ट्राई टू पुल 1 इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द नेबरिंग सिलिकॉन एटम. तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो अगेन इट फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कहीं और दूसरी जगह पे यहाँ पे फिर से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा.
and this vacancy is known as hole. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा नंबर में एज कम्पेयर टू द वैकेंसी दैट इज़ द होल्स। तो यहाँ पे अभी इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कंसिडर किया है कि ये जो पेंटावैलेंट एलिमेंट दैट इज़ आर्सेनिक, इसको हम लोगों ने सिर्फ वन टाइम ही ऐड किया है। अगर कंसिडर करो इफ़ वी ऐड अ पेंटावैलेंट एलिमेंट इन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को एवरी टाइम एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए बोला गया है इट इज़ इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एज कंपेयर टू द होल। सो दिस इज अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट वाला है दैट इज़ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी हम लोग फिर से यही वाला स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, सिर्फ यहाँ पे अभी ट्राईवैलेंट एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ट्राईवैलेंट एलिमेंट इस एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, उसके बाद इंडियम है, गैलियम है। सो दीज आर द ट्राईवैलेंट एलिमेंट। तो हम लोग अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि सपोज हियर वी कंसिडर द एल्यूमिनियम। ओके, अगर एल्यूमिनियम कंसिडर करेंगे, we know that this aluminum consists of 3 electron in its outermost shell. So this out of this 3 electron, all these 3 electron it form a covalent bond with the neighboring silicon atom and one vacancy is there। यानी जैसे ही प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ऑलरेडी एक वैकेंसी हम लोगों को मिल जाता है। तो अभी देखते हैं हम लोग ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर इज डोप्ड विद अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी such as indium, gallium, aluminium, boron, we get a p-type semiconductor. The trivalent atom has 3 valence electron. So this every trivalent dopant atom share its 3 electron with their neighboring silicon atom to form a covalent bond। ठीक है, यहाँ पे covalent bond formation हो गया with respect to this 3 atom, with respect to the 3 electrons। So every trivalent dopant atom share its 3 electron with their neighboring silicon atom to form a covalent bond। Then the bond between the dopant atom and the fourth neighboring silicon atom has deficiency। दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या है, deficiency of 1 electron, and this vacancy of electron is called as hole। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, hole करके बोलेंगे। As the hole accept electron, so it is supposed to be a positive charge। The hole has tendency to accept electron in its close vicinity, therefore the impurity atom is called acceptor impurity। तो n टाइप में क्या था, डोनर इम्प्यूरिटी था। ठीक है, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता था इट गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में ये डोनेट होता था, इसीलिए वहाँ पे ये हो गया डोनर इम्प्यूरिटी। और यहाँ पे अभी ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन एज द एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। तो अभी ये इसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे होल है यानी वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी क्या करेगा, इट ट्राई टू पुल 1 इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द नेबरिंग सिलिकॉन एटम। ठीक है, अगर एक यहाँ पे फिर से आ गया एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिर से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से कहीं तो भी एक जगह पे वैकेंसी आएगा, तो वैकेंसी आएगा तो वो भी फिर से वही सेम प्रोसेस ही करता रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे ये जो द होल हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन in its close vicinity, therefore the impurity atom is called acceptor impurity। At room temperature an electron from the neighboring atom can jump into the holes and these holes disappear and a new hole is created
at the position of displaced electron. So it appears that the hole are moving but only the position of the hole are changing. जैसे मैंने बोला था कि ये जो प्रोसेस है रिपीट होते जाएगा, इसीलिए अभी यहाँ पे एक वैकेंसी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाए, कहीं यहाँ पे आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए बोला गया है द पोजिशन ऑफ द होल आर चेंजिंग। This conductor has large number of holes and conductivity is due to hole, that is the positive charge. Therefore, it is called a p-type semiconductor. Then, in p-type semiconductor have large number of holes created by trivalent impurity atom and few electron hole pair generated by thermal energy. So the holes are in a majority and the electrons are in minority charge carrier. The number of holes, hence we say that the number of holes in the valence band is much larger than the number of electron in the conduction band. Hence in case of this p type semiconductor, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये number of holes are greater as compared to the number of electrons. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया NH इज ग्रेटर दैन Ne। तो ये जो हो गया हम लोगों का पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो हम लोग डायरेक्टली टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते थे रेक्टिफायर सर्किट, लेकिन रेक्टिफायर सर्किट के लिए भी आप लोगों को, हम लोगों ने लास्ट ईयर जो भी कुछ बेसिक पढ़ लिया है वो पता रहना ज़रूरी है, तभी हम लोग आप लोगों को समझेगा कि रेक्टिफायर सर्किट में वहाँ पे कैसा फंक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और रिपीट करने वाले हैं। तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो सेमीकंडक्टर का हम लोग का जो बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। यानी 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर लिखना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे, इन केस ऑफ दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर impurity atom are pentavalent such as antimony arsenic, और p टाइप में कैसे आएगा फिर, in p type of semiconductor impurity atom are trivalent such as indium और aluminium। उसके बाद in case of this n type में the impurity is called donor impurity, और p type में आएगा the impurity is called acceptor impurity। then थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, in case of this n type semiconductor में the number of electron in conduction band is more than the number of hole in valence band। then in case of this n type semiconductor we also write Ne is greater than NH। then p type semiconductor में हम लोग लिख सकते हैं number of holes in the valence band is more than the number of electron in the conduction band, that is NH is greater than Ne। then फिर से हम लोग n टाइप सेमीकंडक्टर में लिख सकते हैं all the covalent bond surrounding each impurity atom are complete। उसके बाद p टाइप में आएगा one of the covalent bond surrounding each impurity atom is complete and contains hole। then और एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर में, in n type the electrons are called majority carrier and the holes are called minority carrier। in p type में the holes are called majority carrier and the electrons are called minority carrier। then n टाइप में हम लोग लिखेंगे इट्स कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और p टाइप में हम लोग लिखेंगे इट्स कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू होल्स। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो p टाइप और n टाइप जो भी है, whenever we join this p type
एंड एन टाइप मटेरियल को अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है, दैट इज़ पी एन जंक्शन, ठीक है। और उसी को बोला जाता है फिर आगे चल के, दैट इज़ द पी एन जंक्शन डायोड। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो पी एन जंक्शन यानी क्या होता है। तो व्हेन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम कंसीडर किया है, हियर दिस वन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप दोनों को भी वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो जब दोनों को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म होगा, ये यहाँ पे फॉर्म होगा PN junction. So we say that when P-type semiconductor and N-type semiconductor are joined together, then it form the PN junction. And वहाँ पे ही आगे में इसी डायग्राम के आगे में हम लोगों ने सिंबल भी ड्रॉ किया है, दिस इज द सिंबल फॉर PN जंक्शन डायोड। तो ये जो PN जंक्शन डायोड है, अभी हम लोग देखेंगे ये जो PN जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है। तो ये जो PN जंक्शन डायोड को वर्क करने के लिए इसको पहले बाइसिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शो किया है, दिस इज़ द अनबायस PN जंक्शन डायोड, यानी इसको कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी, दैट इज़ इट डजंट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स, तो इसीलिए बोला गया है दिस इज़ नोन एज द अनबायस PN जंक्शन डायोड डायग्राम, ठीक है। तो ये जो अनबायस PN जंक्शन डायोड में सिंपल अगर ये जो दो स्ट्रक्चर को ज्वाइन करेंगे लेकिन इसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन और जो भी होल्स है वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कंसिडर करेंगे व्हेन हाफ पार्ट ऑफ अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विथ अ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एंड हाफ विथ अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, वी गेट अ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक हाफ पार्ट में पहले क्या डोप किया है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, और सेकेंड हाफ में फिर वहाँ पे डोप किया है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, देन यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एक PN जंक्शन डायोड फॉर्म हो गया। द बॉर्डर वेयर द P रीजन मीट विद द N रीजन इज कॉल्ड PN जंक्शन। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, दिस वन लाइन, this line is known as the PN junction line. The N region contains a large number of free electrons, ठीक है, because we know that in case of this N region electrons are majority charge carriers, hence we say that in N region contains a large number of free electron and the P region contains a large number of free holes, ठीक है। और ये जो होल्स है उसको शो किया गया है पॉजिटिव चार्ज से। When the junction is just formed, some holes from the P region and some electron from the N region cross the junction line and combine with electron and holes respectively, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, ये जो जंक्शन लाइन को कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल्स क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये जो मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके फिर मैंने वहाँ पे शो किया गया है कि जंक्शन लाइन क्रॉस करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और वहाँ पे एन टाइप रीजन में ही वहाँ पे आ गए हैं होल्स। तो अभी क्या हो जाएगा, when the electrons leave n region they create a positive ion and when the hole leave the p region they creates a negative ion। तो ये जो सर्कल में मैंने माइनस लिखा है और सर्कल में ही प्लस लिखा है, तो वो क्या शो कर रहा है, इट फॉर्म अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। The region near the junction is depleted of free charge, hence called depletion region। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही ऐसे बहुत सारे चार्ज कैरियर जंक्शन लाइन को क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ पे एक ऐसा रीजन फॉर्म हो जाएगा, इन दैट रीजन
अ मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट और उसी रीजन को फिर बोला गया है दैट इज द डिप्लीशियन रीजन। तो द रीजन नियर द जंक्शन इज डिप्लीटेड of free charge, hence called a depletion layer, or it is also known as a depletion region. The crossing of electron and the holes create a wall of ion which build up a difference of potential across the junction, and this potential difference prevents a continuous diffusion of electrons and holes across the junction, and hence it is called a barrier potential. The barrier potential, it is about the 0.3 volt for germanium and 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये जो डिप्लीशन रीजन कंसीडर किया गया है उसी डिप्लीशन रीजन में वहाँ पे जो भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी जो भी आयंस फॉर्मेशन हो गया है, सो ड्यू टू दिस आयंस फॉर्मेशन, तो वहाँ पे वो जो आयंस फॉर्म हो गए वो स्टेबल तो नहीं रहेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने का कोशिश करेंगे। तो इसी कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, एंड इस पोटेंशियल इट इज़ नथिंग बट अ बैरियर पोटेंशियल, and this barrier potential having value is 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. So this is about the पीएन जंक्शन डायोड। ये कैसे पीएन जंक्शन, अनबायस पीएन जंक्शन कैसे वर्क करता है ये हम लोगों ने देखा। उसी के बाद अभी नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे दैट इज़ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस मोड एंड रिवर्स बायस मोड। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली हम लोग अपने टेक्स्ट बुक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस मोड एंड रिवर्स बायस मोड कैसे होता है।